Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, today I'm here with Class 7 NCERT CBSE syllabus, Chapter Nutrition in Animals. And in this video, I will be talking about the different ways of taking food, different mode of taking food. Also, I will be discussing about how does digestion in human takes place, and particularly I am going to talk about mouth and the buccal cavity. ओके खाने के बाद जो डाइजेशन माउथ और बकल कैविटी में होता है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स, जो डिफरेंट पार्ट्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो कैसे फंक्शन करते हैं, इस वीडियो में हम माउथ और बकल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू काइंडली लाइक, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting any more time, get ready with your paper and pen and let's start. So first of all, let's talk about animal nutrition. See, we all know कि animal को काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, उनकी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए बॉडी का, दे नीड न्यूट्रिशन. सो एनिमल्स need nutrient. Okay, so there is a nutrient requirement. So different animals take food differently. Okay, there are different mode of intake of food. किस तरीके से वो खाना खाते हैं, उन सब में अलग अलग तरीका है. So its utilization in the body is very important. Yes or no? How it is utilized in the body? जो हम खाते हैं वो utilize कैसे होंगे? The complex substance are converted into simpler substance. Okay? उसी को हम क्या बोल रहे हैं? Digestion बोल रहे हैं. Digestion क्या है? It's very easy. The breakdown of complex substance to simpler substance. जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है फूड का, उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन है. उसको सिंपलर सब्सटेंस में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों? इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंस सो दैट द बॉडी इज एबल टू अब्सॉर्ब इट एंड यूटिलाइज इट फॉर द बॉडी फंक्शनिंग. सो एज आई टोल्ड यू, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. For example, let's start with the bees and the hummingbirds. Okay, hummingbirds रहती हैं, bees रहती हैं, तो वो क्या करती है? वो suck करती हैं. तो उनका mode of transmission कैसा हो गया? Sucking. They are sucking the nectar. Okay, तो ये एक mode of taking food हो गया, ingestion का एक तरीका हो गया. Then second, if we see snakes like python, जो बड़े बड़े snakes है like python, they will swallow the organism as it is. Okay, जो भी उनका food है उसको वो सिर्फ direct swallow कर देते हैं. If we talk about some aquatic animals, we can see here they filter the food particles which are floating in the ocean. Okay, जो भी पानी में float करते हैं particles, food particles, उनको वो filter करते हैं. For example, this is an example, ocean sponge. Okay, it is an aquatic animal. Ocean sponge, they are going to filter the food particles which are floating in the water. So different ways we have seen. Sucking हो गया, swallowing हो गया, filtering हो गया. So these are different modes of transmission. Let's do activity 2.1. This activity is there in your textbook also. So where you have to write the different modes of feeding, how they are feeding. So the first, if we see here, is the snail. Okay, तो ये snail खाता क्या है बच्चों? ये पत्तों को खाएगा, जो लोअर प्लांट्स रहते हैं, जो नीचे लिए लीव्स रहेंगे, उनको खाएगा. और वो कैसे खाता है? स्क्रैपिंग करके. ओके, इट्स नॉट सकिंग, हेयर थोड़ा मिस्टेक हो गया. इट विल बी स्क्रैपिंग. स्क्रैप करके वो खाता है. स्नेल कैसे खाता है? स्क्रैपिंग करता है. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट एंट क्या खाती है? इंसेक्ट्स को खाती है. ओके, एंड द शुगर, द फूड पार्टिकल्स, तो वो कैसे खाती है? वो कैप्चर करती है एंड देन स्वॉलो करती है. कैप्चर करती है, च्यू करती है, बाइट करती है एंड देन स्वॉलो कर देती है. ओके, ईगल की बात करेंगे तो ईगल किसको खाएगा? एनिमल्स को खाता है, जो छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, छोटे बर्ड्स रहते हैं. ओके, तो उन एनिमल्स और बर्ड्स को क्या खाता है? ईगल खाता है. ओके, तो कैसे खाता है वो? बाय कैप्चरिंग एंड स्वॉलोइंग. कैप्चर करता है और स्वॉलो कर लेता है, खा लेता है. ठीक है. देन हमिंग बर्ड,
हमिंग बर्ड क्या खाती है? नेक्टर लेती है। हमने बोला नेक्टर खाती है, स्मॉलर इंसेक्ट्स को भी खाती है, उसके अलावा वो नेक्टर भी लेती है। तो वो लेती कैसे है? बाय सकिंग। कैसे लेगी? बाय सक करती है। ओके, देन लीस जो बालों में हो जाते हैं ना जुएं, लीस। ओके, सो दे विल सक दी ब्लड, है ना, बॉडी से क्या, स्कैल्प से सक करते हैं ब्लड को। सेम वे मॉस्किटो ऑल्सो, what the kind of food they take? They also take blood and they also do sucking. They also suck the blood. Butterfly, they will take nectar by sucking. Okay, they also take by sucking. Then housefly, they will the kind of food the housefly take is the sugary food as well as the dead and decaying food. जो सड़ा गला फूड रहेगा ना, या फिर कुछ मरा हुआ है तो उसमें मक्खियाँ आती है ना, भिन आती है। सो डेड एंड डिकेइंग फूड एंड शुगर उनका खाना होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ फूड, और वो भी सकिंग करके ही फूड को लेते हैं। ओके, सो वन मोर टाइम लेट्स सी। स्नेल पत्ते खाएगा। कैसे खाएगा? स्क्रैपिंग करके खाएगा, स्क्रैप करेगा और खाएगा। एंड क्या करेगी? मीठा फूड पार्टिकल्स पे फीड करती है। और कैसे करती है? च्यू भी करती है, बाइट भी करती है और स्वॉलो कर लेती है। ओके, देन ईगल जो कि लोअर एनिमल्स और बर्ड्स को खाएंगे, वो कैसे खाएगा? कैप्चर करेगा और स्वॉलो कर देगा। हमिंग बर्ड स्मॉल इंसेक्ट को खाते हैं, नेक्टर भी चूसते हैं ना हमिंग बर्ड्स, अभी हमने एग्जाम्पल में डायग्राम भी देखा था। तो दे डू इट बाय सकिंग। लीस ब्लड लेते हैं सक करके, मॉस्किटो भी ब्लड को सक करके पीते हैं। देन बटरफ्लाई ऑल्सो दे विल सक द नेक्टर एंड टेक इट। हाउस फ्लाई will go and feed on sugar and dead and decaying food. They will also do it by sucking. So these are the different mode of feeding and the different kind of food that different organism is taking. Now let's talk about an amazing fact. The amazing fact about a starfish. Okay, तो जो starfish है ना बच्चों, वो क्या करती है? सिर्फ ऐसे एनिमल्स पे फीड करती है जिसके हार्ड शेल्स होते हैं। ओके, तो उस ऐसे एनिमल्स को खाएंगी जिसका बॉडी में ऊपर हार्ड शेल्स है, और ये हार्ड शेल्स बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। वी कैन से CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का ये हार्ड शेल बना होता है। जिस एनिमल के पास ये हार्ड शेल होता है उस पे ये स्टारफिश फीड करती है। तो वो क्या करती है? पहले तो क्या करेगी बच्चों? उस शेल को ओपन कर देती है। ओपन करने के बाद क्या करती है? पहले तो अपनी बॉडी से क्या करेगी? उस शेल को ओपन कर देगी जिसको वो खा रही है। देन जो स्टारफिश है वो क्या करती बच्चों? वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल पॉप आउट इट्स स्टमक। अपने पेट को बॉडी से बाहर निकालती है। ओके, और अपने माउथ से निकालती है बाहर। इट विल पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। ओके, माउथ से बाहर निकालती है स्टमक को ताकि वो खा सके, टू ईट दैट सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। ओके, देन उसके बाद क्या होता है? ये स्टमक वापस अपनी बॉडी में उसके चले जाता है। आफ्टर ईटिंग द सॉफ्ट एनिमल द स्टमक गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो होता क्या है? जो स्टारफिश है वो शेल वाले एनिमल्स को खाती है। ये शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो पहले तो ये क्या करती है? शेल को तोड़ के निकाल देती है। तो जब एनिमल एक्सपोज हो जाता है तब वो अपने माउथ से ही स्टमक को बाहर निकालती है और उस सॉफ्ट एनिमल को खा लेती है। बाद में ये स्टमक क्या होता है? बॉडी के अंदर चले जाता है और धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट होता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे हाउ स्टारफिश इज अमेजिंगली ईटिंग द फूड. Now coming to humans, we will talk about the digestion in humans. I hope यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है. तो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं. ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जो कि स्टार्ट हो रहा है माउथ से, दैट इज द बक्कल कैविटी और माउथ. देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फूड पाइप, जहां से वो नीचे जाएगा, पेट तक पहुंचेगा. इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईसोफेगस. देन थर्ड इज द स्टमक, यहाँ पे हमारा पेट है जो स्टमक. देन कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस. ओके, तो क्या हो गया? ये स्टमक के बाद क्या आया? हमारी जो अंदर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, बाहर वाली लार्ज इंटेस्टाइन, और जहां से बाहर निकलेगा वेस्ट, दैट इज द एनस. ओके, सो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल. देन
not only these organs but there are some glands which help in digestion. First we can talk about salivary glands. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 salivary glands are there. Okay, this and this. These 3 are the salivary glands. और इनके नाम अगर हम देखेंगे तो पहला है parotid gland. पैरोटिड ग्लैंड जो अपने कान के इधर आएगा. देन हमारे जो लोअर जॉ है उसके इधर आएगा सबलिंगुअल ग्लैंड. सबलिंगुअल टंग के नीचे है तो सबलिंगुअल. ओके, देन इज दी सबमैंडिबुलर. देन इज दी सबमैंडिबुलर. तो 3 सैलिवरी ग्लैंड्स कौन से हो गए? पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स. ये तीनों ग्लैंड्स सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये भी हेल्प करते हैं डाइजेशन में. देन अदर 2 ग्लैंड्स आर देयर. पैनक्रियाज. यस, पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड. ओके, पैनक्रिया एक ग्लैंड है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में. देन द थर्ड ग्लैंड विच विल हेल्प इन डाइजेशन इज लीवर. ओके, आपने सुना होगा. सो दिस इज लीवर. तो अदर देन द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल, the glands like salivary glands, pancreas and liver also help in digestion. तो बच्चों आज हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे. डाइजेशन इन ह्यूमंस. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द माउथ, द बकल कैविटी. ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट माउथ तो हमको पता है माउथ में क्या क्या आता है बच्चों. हमारे टीथ आते हैं, हमारा टंग आता है और हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं. जो भी हमने पढ़े ना, ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में ही आते हैं. ओके, तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहला हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में. तो टीथ का स्ट्रक्चर आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा. ये हमारा है एनाटॉमी ऑफ अ टूथ. ओके, तो टूथ को अगर हम क्लोजली देखेंगे तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. जो अपर पार्ट है उसको हम क्राउन बोलते हैं, जो कि विजिबल है, जो हमको ऊपर से दिखता है. ओके, देन एक डिप्रेशन दिखेगा यहाँ पे, इसको हम गला बोलते हैं, नेक बोलते हैं. ओके, ये टूथ का नेक है. देन जो हमको नहीं दिखता है, जो गम्स में छुप जाता है, उसको हम बोलते हैं रूट. ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टूथ को, क्राउन, नेक एंड दी रूट. ओके, तो ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे टूथ के. इसको हम डिटेल में अंदर से पढ़ सकते हैं. ये आप लोगों ने लास्ट प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा होगा. द इनामल, डेंटाइन, उसके अंदर का डेंटाइन, और ये पल्प कैविटी. क्या है? इनामल बाहर का, देन उसके अंदर का डेंटाइन एंड सबसे अंदर का हो गया हमारा पल्प कैविटी. देन अगर ये हमारे सब क्राउन पार्ट में रहेगा. ठीक है बच्चों. अभी नेक पार्ट क्या है? वो जो डिप्रेशन है जहां से वो ज्वाइंट होता है गम्स से. ठीक है, अभी ये रूट्स, ये हमारी रूट्स हो गई. अभी ये रूट्स के अंदर हम देखेंगे तो नर्व और ब्लड सप्लाई है पूरी. ठीक है, पल्प से आती हुई सारी नर्व सप्लाई होती है. तभी ये नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होने की वजह से ही देखो कभी कभी टूथ डीके हो. सी स्टूडेंट्स, व्हेन द टूथ गेट डीकेड, ओके, जब तो क्या होता है, जब यहाँ पे ये नर्व्स क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, तब हमको क्या होता है, दर्द होता है ना. टूथ डीके में दर्द क्यों होता है? क्योंकि ये नर्व्स एक्सपोज हो जा रही है. डीके होने की वजह से ये नर्व्स दिख रही हैं, तो उनपे कुछ भी अगर लग रहा है तो ठंडा पानी, गर्म पानी, कुछ भी लग रहा है तो सेंसिटिविटी फील होती है. सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, राइट. तो अभी हम उनके टीथ के पहले टाइप पढ़ेंगे, फिर उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो अगर हम टाइप्स देखेंगे तो बच्चों इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन होता है, प्रीमोलार एंड मोलार. ये 4 मेन टाइप्स के टूथ हैं. पहला है इंसिजर टीथ, देन कैनाइन होता है, प्रीमोलार एंड मोलार. अभी बच्चों ये तो हमने नाम पढ़ दिए. ओके, सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन. ओके, सो फर्स्ट we will see where is the position. we talk about the incisors teeth. ये फ्रंट के जो टीथ है ना बच्चों को, जो सबसे पहला टीथ आता है ना नीचे का, वो ये इंसिजर टीथ. ओके, तो ये फ्रंट टीथ है जो ऊपर भी है नीचे भी है. ठीक है, तो इधर से साइड ऑफ द इंसिजर आते हैं कैनाइन. अभी ये फ्रंट में आ गया इंसिजर. ओके, ये चिजल शेप का होता है, इसकी एज थोड़ी सी शार्प एज का होता है. ओके, ये क्या करते हैं, बाइट करने के, जैसे हम कुछ खा रहे तो हम बाइट कर रहे हैं ना, तो फ्रंट टीथ से बाइट करते हैं. यस, कैनाइन हो गया क्या, जो इंसिजर के बाजू में आएगा, दोनों साइड में आएगा. ओके, फ्रंट टीथ हो गए, ये सामने वाले 2 फ्रंट टीथ हो गए हमारे इंसिजर, और इसके बाजू में जो टीथ आ रहे हैं वो हो गए कैनाइन. ओके, तो ये कैनाइन कैसे हैं,
ये स्लाइटली पॉइंटेड रहते हैं। ये तो शार्प रहते हैं लेकिन कैसे फ्लैट में रहते हैं और शार्प रहते हैं। ये क्या रहते हैं बच्चों, पॉइंटेड रहते हैं। ओके, द सेम फंक्शन बाइटिंग ऑफ पीसेस ऑफ फूड। तो इस तरीके से हमने इंसीजर्स और कैनाइन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारे अभी इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया। अभी ये फ्रंट टीथ इंसीजर हो गए, ये वाले कैनाइन हो गए। अभी हमारे बाद में क्या आएंगे, प्रीमोलार टीथ आएंगे। ओके, सो बिहाइंड कैनाइन दोनों साइड में अपर जॉ, लोअर जॉ, सब जगह चारों तरफ, मतलब कैसे हो गया, अगर हम 4 में डिवाइड करते हैं, ये यहाँ पे इधर एक, अपर जॉ में और लोअर जॉ में भी इधर और इधर, ऐसे हम 4 में डिवाइड करते हैं। तो प्रीमोलार भी क्या होंगे, किधर आएंगे, कैनाइन के बाजू में आएंगे। एंड 2 पॉइंट्स रहते हैं, इसमें कप्स रहेंगे ऐसे। ये हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग और टीयरिंग द फूड। उसी के बाजू में आते हैं मोलार टीथ, और ये हमारे एकदम लास्ट में आते हैं, ठीक है, पीछे साइड आते हैं एकदम। 4-5 कप्स रहते हैं इसमें, और नीचे अगर देखेंगे 2 और 3 रूट्स रहती है। इसमें 1 या 2 रूट रहेंगी और यहाँ पे 2-3 रूट्स रहेंगी। ये काम आते हैं चूइंग और ग्राइंड करने के लिए। ओके, चूइंग एंड ग्राइंडिंग का इनका फंक्शन है। तो आया समझ में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि हमारे टूथ में डीके होता है, खराब हो जाते हैं। ये खराब क्यों होते हैं? ओके, ये दांत हमारे खराब क्यों होते हैं बच्चों? ये होता है जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो शुगर है ना, वो हमारे दांतों में रहता है। तो जब इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, तब ये जो शुगर है कन्वर्ट हो जाता है एसिड्स में। ओके, और क्या होता है, टूथ डीके। हम जब खाना खाते हैं तो हम बोलते हैं ना, खाने के बाद रिंस करना चाहिए, माउथ कुल्ला करना चाहिए पानी का, है ना। एवरी टाइम तो हम ब्रशिंग नहीं कर सकते, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे करनी है, मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर स्लीप, राइट। सो जो ये शुगर है, हम खाना खाते हैं उसमें जो शुगर है वो हमारे दांतों में रहता है। और जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं इस शुगर के ऊपर, तब दे आर कन्वर्टिंग शुगर इनटू हार्मफुल एसिड्स। ओके, तो ये हमारे दांतों को धीरे धीरे डीके करते हैं। ओके, तो उसमें क्या होगा, इस एसिड फॉर्मेशन की वजह से टूथ एक होएगा, दर्द होएगा, और कभी कभी वो क्या होगा, सड़ के डीके होके हमारा दांत पूरी तरह से खराब हो जाएगा और हमें लास्टली दांत निकालना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से टूथ डीके होता है। सो ये ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ। हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ, वी हैव टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, यस और नो, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट वी हैव टू ब्रश द टीथ। वी हैव टू डू द डेंटल फ्लॉसिंग ऑल्सो। दांतों के बीच में कुछ फंस गया तो फ्लॉस से फ्लॉसिंग करके क्लीन करना है। जब भी हम खाना खा रहे हैं तो हमें क्या करना है, रिंस करना है माउथ को। ओके, कुल्ला करना है पानी से हर खाने के बाद, ताकि हमारे मुंह में जो भी फूड पार्टिकल्स इधर उधर रह गया है वो पानी के साथ में रिंस करने के बाद निकल जाए। एंड स्पेशली जो बच्चे माउथ में अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट डालते हैं या फिर फिंगर्स डालते हैं, उन्हें वो मुंह में नहीं डालना है। ओके, उसकी वजह से भी क्या होता है, टूथ डीके होने का फुल चांसेस है। इस तरीके से हम दांतों का केयर करेंगे। अंडरस्टूड बच्चों? तो टीथ के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द माउथ इज द टंग। ओके, तो टंग के बारे में हम पढ़ेंगे। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक तरीके का मसल्स है। ओके, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग? इट हेल्प इन टॉकिंग, है ना, बोलने के लिए हमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि टंग के वर्ड्स हेल्प से ही हम बोल पाते हैं। देन इट हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा, जो थूक आता है ना वो मिक्स होने के लिए, फूड में मिक्स होता है, तो उसके लिए भी हेल्प करता है हमारा टंग। देन यस, इट हेल्प इन swallowing the food, and also very important function, it tells us the taste of the food. Okay, अभी ये टेस्ट कैसे बताता है हमें, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा about the taste buds which are present on the tongue. So ये taste buds हमारे टंग में प्रेजेंट है। फ्रंट में है स्वीट का टेस्ट बर्ड, सॉल्टी का साइड में है, सॉर का थोड़ा और ऊपर, एंड बैक साइड में है हमारा बिटर टेस्ट बर्ड। ओके, ये हमें टेस्ट फील करवाते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज टेस्ट बर्ड्स। ये हमारे टंग में प्रेजेंट है और उसकी वजह से हमें कोई भी फूड का टेस्ट आता है। तो ये हो गया टंग के बारे में। द लास्ट चीज जो बच रही है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। एज आई टोल्ड यू, दे आर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स, और इनका काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना, थूक प्रोड्यूस करना। तो ये सलाइवा प्रोड्यूस करके क्या करते हैं, स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में। स्टार्च क्या है बच्चों? स्टार्च भी एक शुगर ही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं ना हम क्या पढ़ रहे हैं,
डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ रहे हैं ना इन एनिमल्स, तो डाइजेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जो स्टार्च है जो कि कॉम्प्लेक्स है एक शुगर, वो कन्वर्ट हो रहा है सिंपलर शुगर में, और इसको कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, सलाइवा। सलाइवा में क्या प्रेजेंट है बच्चों, सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टायलिन। ये एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवा में। ओके, तो हमने पढ़ा 3 सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड दी सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, तो ये तीनों प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, और सलाइवा क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन सा डाइजेशन, स्टार्च विल गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर। कैसे, क्योंकि सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज, ऑल्सो कॉल्ड एज टायलिन। So students, आप लोगों की बुक में जितना है, I have taught all this. If you want more detailed video, you can go through the following links. ओके, इन लिंक में मैंने सलाइवरी ग्लैंड्स को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो ये वीडियोस आप इस लिंक के थ्रू डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैनी ओलंपियाड्स, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होएगा। तो डू विजिट दिस लिंक्स एंड go through in detail about the salivary glands and the digestion. So before I wind up, let's quickly revise what all we studied today. So we have studied about how complex substances are converted into simpler substance, and this is nothing but the digestion. So next we studied about the different ways of taking food. We have seen different examples, and also we have studied about how digestion takes place in human. एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा स्पेशली आज पढ़ा हमने माउथ के बारे में, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ा, उनका फंक्शंस पढ़ा, टंग पढ़ा, टंग के फंक्शंस पढ़े, टेस्ट बड्स पढ़े, सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम पढ़े और उनका काम पढ़ा। राइट, सो I hope you have understood what I have taught you today in this video. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Hope you are enjoying studying with me. Thank you. Keep studying. Bye bye.